Hello guys, welcome back to Career Power. This is Janvi Mehra with you, and in today's video we are going to discuss the previous year questions of the IBPS clerk exam. Okay, so आज हम इंग्लिश के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, जो ये आपका IBPS का एग्जाम होने वाला है क्लर्क वाला. ठीक है, ओके गाइस, सो आज हम इसको सॉल्व करेंगे. सो देखो ये वाले कौन से क्वेश्चंस है, लेट्स जस्ट सी. ओके, दीज आर द करेक्ट स्पेलिंग. ओके, तो दीज आर रिलेटेड टू स्पेलिंग्स. These questions are related to spellings, so spellings are important. Okay, in my previous videos I have covered error detection questions. ठीक है, sentence rearrangement questions cover करवा चुकी हूँ, then parajumbles करा चुकी हूँ. वही parajumbles and sentence rearrangement are same. Okay guys, so now आज हम spelling related previous year के questions को solve करने वाले हैं. Let's just first read the directions so that you will get a little acquainted with how you are supposed to solve. Now direction says, in the following questions a sentence is given consisting 4 highlighted words. Choose the option reflecting the word which is either misspelled or grammatically incorrect. Okay, if all the highlighted words are correct, choose option E, that is no error as your answer choice. ठीक है, तो या तो spelling error है या फिर grammatically incorrect यूज हुआ है वो पर्टिकुलर वर्ड. ठीक है, तो 4 हाईलाइटेड वर्ड्स दिख जाएंगे आपको क्वेश्चन में. ठीक है, बोल्ड वाले, उनमें से हमें चूज करना है कि कौन सा वर्ड जो है वो गलत सेंस में यूज है. ठीक है, ओके, फर्स्ट वन इज making the request for a non-smoking room seemed reasonable for everyone since the woman was allergic to smoke. Okay, so let's just check the spelling. Making is true, I mean it's correct. Request is also correct. Allergic is also correct. Then what is okay? This is wrong. ठीक है, this is wrong. Reasonable is wrong. The correct spelling of reasonable is REASONABLE, right? So this is the correct answer. Reasonable's spelling is wrong. Okay guys, now moving on to the next question. When we are involved in large scale projects we must make judgments. अच्छा, इन्होंने mans लिखा हुआ है, so it's very easy. यहीं पे गलती है. On an individual basis about whether they are good or bad, right? So judgments spelling is again wrong. So correct is, please बताओ मुझे comment करके, judgments. Okay, this is the correct spelling. So the answer would be B. Okay guys, now moving on to the next question. Several experiments were tried to determine positively whether or not she had any perception of sound. Okay, so experiments is wrong, determine is correct, weather is also correct, right? एक होता है हमारा weather, एक होता है हमारा weather. ये वेदर कौन सा होता है? ये होता है मौसम वाला. ठीक है, और ये वाला वेदर यहाँ पर यूज हुआ है. ठीक है, या तो ये या वो, वेदर दिस और वेदर इधर दिस इधर, और वेदर मीन्स कि कहीं ये या फिर कहीं वो, राइट? सो यहाँ पर जो वेदर है इसकी स्पेलिंग सही है. ओके, द करेक्ट रॉन्ग वन इज experiment. Okay, experiments. So E is missing. Right, experiment. Okay, next one is, when the man gave the terrific persuasive speech at the conference, the observers applaud with gusto by putting their hands together. So terrific means, terrific का क्या मतलब होता है? ठीक है, परसुएसिव का क्या मतलब होता है? इतने सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आपके लिए हैं यहाँ पर, बताइए. और कौन सा है? अपलॉड का क्या मतलब होता है? ठीक है, देखो टेरिफिक का मतलब होता है ग्रेट या फिर ह्यूज, राइट? अमेजिंग वाला. टेरिफिक, द शो वॉज टेरिफिक, राइट? नाउ परसुएसिव, परसुएसिव का क्या मतलब होता है? किसी को कन्विंस करने वाला, कि इतना बढ़िया बोला उसने कि लोग उससे कन्विंस हो गए, लोग उससे परसुएड हो गए, राइट? सो परसुएड इज द वर्ड, परसुएड. ओके गाइस, नाउ
ऑब्जर्वर्स अपलॉड, अपलॉड का मतलब होता है टू क्लैप फॉर प्रेजिंग, है ना, तालियां बजती हैं तारीफों के लिए, so that is to applaud, right? So the correct spelling, I think everything is correct here, जो जो bold में है वो सारे correct है already, so here the answer would be no error guys, okay, no error would be the answer. Okay, now moving on to the next question. Okay, we have another types of question, type of, sorry, so let's see कि कौन से type का है इसका, ये हमने type 2 पढ़ा है आज, okay, और ये हमारा टाइप 1 क्वेश्चंस जो कि थे स्पेलिंग एरर्स वाले, राइट? सो टाइप 2 क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट्स ऑफ अ सेंटेंस with a highlighted phrase which may or may not be grammatically or contextually correct. Choose the most suitable option that will replace the incorrect highlighted phrase to form a grammatically correct and meaningful sentence. If the given highlighted phrase is correct, choose E. Okay, देखो ये है एरर डिटेक्शन वाला क्वेश्चन, ठीक है? इन्होंने क्वेश्चन में से कुछ ऐसा फ्रेज जो होगा, 2-3 वर्ड्स या 2 वर्ड्स जो है उनको हाईलाइट कर रखा है, मतलब बोल्ड कर रखा है, और हमें बताना है कि उनकी जगह जो है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. तो दिस इज बेसिकली एरर डिटेक्शन, ठीक है, another type of error detection. So let's see the question. Okay, if this is freedom of speech, then then it must be curtailed immediately. It must be, this is very simple, been नहीं बेटा, it must be, ये तो लिखते हैं. You should be present, you must be present. तो been तो होगा ही नहीं ना, been तो थर्ड फॉर्म हो गई ना, ठीक है? तो must be curtailed. curtailed का क्या मतलब होता है? ये curtailed का मतलब होता है to limit, लिमिट करना किसी चीज को, ठीक है? ठीक है, किसी चीज को लिमिटेड रखना, रिस्ट्रिक्टेड रखना, so that is to curtail. Okay, next one is when the police started asking questions, the suspect clammed up. Okay, so clammed up का क्या मतलब होता है? calm down, camped तो अलग ही है, कैम्प तो अलग एक एक्टिविटी होती है, राइट? कैम्प्ड. सो क्लैम्ड हो सकता है क्लैम आउट. द सस्पेक्ट क्लैम आउट. क्लैम आउट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट फॉर्म में गिवन है, राइट? ये जो वर्ब है ये प्रेजेंट में गिवन है, और यहाँ पे है ये पास्ट में ऑलरेडी स्टार्टेड, तो आंसर भी पास्ट में ही आएगा यहाँ पर. तो क्लैम्ड हो सकता है. देन क्लैम्ड ऑफ, तो देखो ये भी नहीं होगा. क्लैम्ड अपना अपने आप में एक फ्रेज होता है, ठीक है? क्लैम्ड अप एक फ्रेज है, ठीक है, एक फ्रेजल वर्ब है. इसका मतलब होता है टू गो साइलेंट और क्वाइट, ठीक है, QUIET, ठीक है? एक होता है क्वाइट और एक होता है क्वाइट. क्वाइट का मीनिंग होता है काफी, ठीक है? द क्लास वॉज क्वाइट, मतलब क्लास जो थी वो शांत थी, ठीक है? और अगर मैं बोलूं सुनीता इज क्वाइट एन अमेजिंग पर्सन, तो क्वाइट मतलब काफी अमेजिंग है वो, ठीक है? सो दैट इज क्वाइट. नाउ सो आंसर इज क्लैम्ड अप. ओके, आंसर इज क्लैम्ड अप. curtailed आई हैव टोल्ड यू, सो आंसर होगा यहाँ पे मस्ट बी, राइट? बीन नहीं होगा. Okay, next one is India has suffered from terrorism, so has Pakistan, right? So it turns out now the first world too is not immune. Okay, so third world, first world, ठीक है? second world जो है ये आपको पता होना चाहिए अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, या फिर अगर आपके किसी भी एग्जाम में हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो पता होना चाहिए व्हाट इज अ थर्ड वर्ल्ड, ठीक है? मैं इंग्लिश की टीचर हूँ तो मैं नहीं बताऊंगी ऑफ कोर्स, लेकिन पता होना चाहिए. आज जाके गूगल करना, आज जाके पढ़ना व्हाट इज अ थर्ड वर्ल्ड, राइट? सो इंडिया हैज सफर्ड फ्रॉम टेररिज्म, सो हैज पाकिस्तान, एंड इट टर्न्स आउट नाउ द फर्स्ट वर्ल्ड टू इज नॉट इम्यून. नाउ इट टर्न्स आउट बिल्कुल सही है ये अपने आप में, ठीक है? ये एकदम करेक्ट है कि ऐसा अब निकलता है या ऐसा अब सामने आती है हमारे चीज कि जो फर्स्ट वर्ल्ड है वो भी बचा नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर ये कंक्लूजन के बारे में बता रहा है, ऐसा जान पड़ता है, ठीक है? तो इट टर्न्स आउट, टर्निंग आउट, इट टर्निंग आउट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है? इट टर्न्स टू आउट ना, कोई कंक्लूजन बाहर आता है, सो इट टर्न्स आउट इज करेक्ट.
so no replacement is needed. Okay, no replacement is needed. सारे ही गलत है, ठीक है. Now fourth is the advocate declared in the court that his client was prepared to surrender. Okay, so his client has prepared to surrender. तो एडवोकेट ने डिक्लेयर किया मतलब पास्ट में बता रहा है कि ऐसा एडवोकेट ने कोर्ट के अंदर डिक्लेयर किया था कि उसका जो क्लाइंट है वो सरेंडर करने के लिए अब तैयार हो चुका है, ठीक है, हैज प्रिपेयर्ड. तो जब डिक्लेयर किया था तो क्लाइंट भी तैयार हो गया होगा ना पहले पास्ट में, तो यहाँ हैज तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा. दैट हिज क्लाइंट वाज प्रिपेयर्ड टू सरेंडर. एडवोकेट ने कोर्ट के सामने ये चीज डिक्लेयर कर दी कि जो मेरा क्लाइंट है वो अब सरेंडर करने के लिए रेडी है. तो पास्ट में, ठीक है, पास्ट में रेडी है. सो वॉज प्रिपेयर टू, उसका क्लाइंट जो था वो कोर्ट में सरेंडर करने के लिए रेडी था, ठीक है. तो ये पास्ट, ये टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम थी यहाँ पर, ठीक है. पहले भी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें टेंस से रिलेटेड ही प्रॉब्लम थी, ठीक है गाइस. तो यहाँ तो नहीं है, पीछे था. ओके, वॉट एवर इट इज. So guys, today we have discussed two types of question. Okay, two types of question. एक हमने spelling errors के करे हैं, दूसरे हमने error detection के करे हैं. So these were the previous year questions for the exam. Okay, so for this exam IBPS for the exam IBPS clerk. Okay guys, so I hope you like this video. I hope आपको समझ आया होगा जैसे मैंने आपको समझाया है. आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं क्लर्क के एग्जाम में, ठीक है गाइस. तो वीडियो को प्लीज फटाफट से सब शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, ठीक है. दिस इज मी जानवी मेहरा, योर टीचर, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इसी चैनल पर. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.